Hey everyone, I am Swaraj Singh and today we are making a text animation. So this is the animation we are building and पहली बार देखने में थोड़ा लगता है कि कॉम्प्लेक्स है but it is very simple to build. So without further ado, let's learn and build. Okay, let's start with the code. So first, let me tell you about the structure. I have three files: index.html, style.css, and main.js. In index.html, I have already taken the font from Google Font. In style.css, I have Tailwind CSS, and I have given font family. I have given the font family to all the text elements. Then in main.js, I have GSAP and scroll digger already imported. So this is the structure, or this is the setup of our. This is the setup. Now we will go to the HTML and build our structure first. So structure will be like कि I need some scroll space क्योंकि this is a scroll driven text animation. So scroll space चाहिए. So first of all what I will do is कि पहले मैं background color थोड़ा डार्क दे देता हूँ जिससे हमारी आंखों को थोड़ा दिक्कत ना हो. तो BG let me go class and BG I will give something dark color B1. Okay, so color is sorted. Now what we will do is कि हम scroll space चाहिए हमें. तो मैं scroll space I will build and मुझे height screen width full वही 100 VH and width 100% and I need this ऊपर और नीचे दोनों से चाहिए तो into 2. Okay, and between of them I need a section and इस section के अंदर इस section को भी I will give class height screen width full and in height screen width full. अब इस section के अंदर what I will do is when I will make a wrapper एंड इस रैपर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना जो चिल्ड्रन एलिमेंट्स होंगे उन सब का जो ये होगा सीएसएस होगा मैं स्टाइल डॉट सीएसएस में लिखूंगा एंड आई विल एक्सप्लेन ईच ऑफ देम. सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज look very carefully. Slice slice dot s uh, slice slice okay. So I have make four slice element. ठीक है, फोर स्लाइस एलिमेंट मैंने बनाया एंड उस ईच ऑफ स्लाइस एलिमेंट हैव वन स्लाइस इनर डिव एंड इंडिविजुअली भी मैंने उनको यूनिकली क्लास दिया है S1 S2 S3 and S2. Okay, so this is the structure, this is the whole structure of our animation. Now we will do the css of the wrapper and all the inner children elements of the wrapper. So first what I need कि इधर ही कर देते हैं सेक्शन को है ना. I need कि wrapper should be in the center of the div. So what I will do, you can do display flags, item center, justify contact center. I will tell you the another way, grid and place item item center. So this will also do the same thing. So this is the whole structure. Now wrapper and slice everything का css करते हैं. So okay, so wrapper and what I will do is कि wrapper को I will divide into four grid elements, four columns में I will divide it. So display grid and grid template column repeat. मैं चार सेक्शन दूंगा एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार सेक्शन मतलब इक्वल लेंथ के चार सेक्शंस. ओके एंड नाउ इसको मैं विड्थ दे सकता हूँ पर अभी विड्थ नहीं देता हूँ, मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ. फॉन्ट साइज आई विल गिव 11 10 रैम आई गेस एंड फॉन्ट वेट दे देता हूँ. फॉन्ट वेट 700 and then I will give it position relative. Okay. ओके, स्लाइस की बात करते हैं तो रैपर का सीएसएस हो गया. इनसाइड द रैपर वी हैव स्लाइस एलिमेंट. स्लाइस को व्हाट वी विल डू इज कि सारे चार स्लाइस एलिमेंट्स हैं एंड सारे स्लाइस एलिमेंट को आई विल गिव कि एक ही रो है तो एक रो में. सो ग्रिड रो तो सिंपल है, एक ही रो है तो एक ही रो में रहना चाहिए एंड कॉलम व्हाट आई नीड कि वो पूरा ही कवर करे, चारों के चारों पूरा कवर करे. सो इट विल गिव समथिंग ग्रिड कॉलम वन. अब देखो चार है ना, सो n+1, सो वी हैव फोर, तो 4+1 5. फाइव लिखना पड़ेगा टू कवर होल सेक्शन. पूरा रैपर को कवर करना, पूरा बिट कवर करना रैपर का. नाउ वी हैव स्लाइस एंड नाउ वी विल गिव कलर दे देते हैं जो हमें दिखे. टेक्स्ट हमने दिया है क्या, मुझे पता नहीं कि टेक्स्ट हमने दिया है कि नहीं, देख लेता हूँ. नहीं, वह नहीं दिया है तो मैं क्या करता हूँ ना कि स्लाइस इनर के अंदर मैं टेक्स्ट दे देता हूँ पहले. सो आई विल गिव ओके, टेक्स्ट दे दिया. नाउ कलर दे दिया. ओवरफ्लो हिडन वी कैन गिव ओवरफ्लो हिडन. स्लाइस इनर वाला जो है वो बाहर ना निकले. नाउ ओवरफ्लो हिडन एंड जस्टिफाई सेंटर दे देते हैं. जस्टिफाई सेल्फ सेंटर दे देते हैं तो जस्टिफाई सेल्फ सेंटर हो गया एंड नाउ वी शुड सी समथिंग. ओके, सो टेक्स्ट आ गया. अब देखो समझो, वी हैव ऑल द फोर स्लाइसेस एंड ऑल द टेक्स्ट स्टैक ऑन ईच अदर. सो एक के ऊपर एक है अभी स्लाइस. ठीक है. ओके, जस्टिफाई सेल्फ. सो
Now what we will do is we will use the clip path. ठीक है, अब let me go to the Chrome and you can search clip path generator and the first link you get, click it and देखो ये this site will be open. अब इस साइट में you have to go to insert. अब देखो समझो, मैं तुम्हें समझाता हूँ. हमारे पास चार स्लाइस हैं, ठीक है. अब चार स्लाइस को S1 S2 S3 S4 we will give different clip paths. अब वो कैसे? सी, मुझे पहले S1 को इतना पढ़ देना है. सो सी इधर दिख रहा है 75%, तो मैं इसको करूँगा कॉपी एंड देन आई विल गो टू माई कोड एंड आई विल गिव S1 एंड आई विल गिव दिस क्लिप पाथ. ठीक है, अब S2 में जाएंगे. अब S2 को थोड़ा इधर सेंटर एंड ये वाला पाथ चाहिए, तो ये 50-25 कुछ होना चाहिए, तो मैं इसको करता हूँ कॉपी एंड S2 S2 एंड इसको मैं दे देता हूँ सिंपल ये एंड इधर 25 कर. ठीक है, वैसे ही सेम तुम इधर लोगे एंड इधर लोगे. सो S3 को तुम्हारा कुछ ऐसा जाएगा. ठीक है, अब S3 को क्लिप आ जाएगा एंड इधर 25 एंड इधर 50. ठीक है, एंड नाउ S4. S4 कैसा, ऐसा चाहिए हमें, तो यही कॉपी एंड S4 पेस्ट. ठीक है, नाउ यू विल सी सम. ओके, S4 वी नीड 75. ओके ओके, अब क्या हुआ है ना कि मेरा एलिमेंट जो है वो चार हिस्से में बटा हुआ है, but it is not visible yet. If you can see कि इधर एक लाइन दिख रहा है छोटा सा, तो it is divided into four segments and that exactly what we want. Now with the help of GSEP we will do the magic and we will do the animation and you will love it. Okay, so first what we will do is जितने भी स्लाइस इनर है ना, आई विल वॉट आई ओनली एनिमेट द स्लाइस इनर पार्ट. तो स्लाइस इनर को मैं एक एरे में बना लेता हूँ. तो वी हैव समथिंग कॉल्ड, एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉस्ट स्लाइस एरे एंड जीसेप में एक यूटिल्स नाम का वो होता है जिससे तुम किसी भी मतलब इफ यू हैव मल्टीपल एलिमेंट्स सो यू कैन पुट इट इनटू एन एरे. सो जीसेप डॉट यूटिल्स डॉट टू एरे. अब मैं इधर दे दूंगा स्लाइस इनर. ठीक, स्लाइस इनर दे दिया एंड नाउ स्लाइस इनर में ना स्लाइस एरे, ये मेरे को सारे एरे दे मतलब एलिमेंट्स दे देगा स्लाइस इनर वाले. अब इसमें मैं फॉर ईच लगा सकता हूँ, तो इसमें मैं दे देता हूँ आइटम आइटम एंड इंडेक्स and we will go like this. अब we will do the gset from item and now look carefully. मैं चाहता हूँ कि एलिमेंट जो है x से थोड़ा अंडरस्टैंड द मैथ्स. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. आई आई डी एक्स जो मेरा इंडेक्स है उसको मैं सी मेरे चार एलिमेंट है. ठीक है, चार एलिमेंट है, तो एरे का जो इंडेक्स होगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 to 3. अब 0 to 3 का जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट क्या होगा, 3 - 0 / 2 जो कि होता है 1.5. तो आई विल डू 1.5 एंड आई विल मल्टीप्लाई विद समथिंग. ठीक है, आप ये कुछ भी किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 200 400. आई विल डू कि 400, इससे तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ता है. ठीक, दिस दिस विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कि कितने दूर से एक्स आएगा. अब इसका मतलब क्या है ना कि तुम्हारे जो 0 और 1 होंगे ना, जो मिड पॉइंट 1.5 है ना, मिड 1.5 के जो नीचे वाले इंडेक्सेस होंगे वो नेगेटिव आएगा. So the element come from left to right, left to initial position. And if 1.5 से अगर बड़े इंडेक्स है तो वो आएंगे राइट टू इनिशियल स्टेट, राइट से आएंगे एंड उससे पहले वाले लेफ्ट से आएंगे. ठीक है, दिस इज द होल दिस थिंग. अब स्क्रोल ट्रिगर चाहिए तो सिंपल स्क्रोल ट्रिगर करना है तो स्क्रोल ट्रिगर सिंपल एंड ट्रिगर करना है मुझे सेक्शन को. ट्रिगर करना है सेक्शन पेरेंट एलिमेंट. स्क्रब दे देता हूँ, स्क्रब दे देता हूँ ट्रू. स्टार्ट होना चाहिए टॉप से 45% एंड एंड होना चाहिए टॉप से 0%. टॉप टॉप भी कर सकते हैं, टॉप से 0%. तो दिस इज द जावास्क्रिप्ट कोड. नाउ दिस इज द ओनली कोड वी नीड. अब यू विल सी समथिंग. सी, looks cool. This is the animation we want and I hope you have understand and thank you for being here.